بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 737 ہے اور آج سورۃ الصافات کی 12 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 38 تا 49، 38 to 49۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 12 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انکم لذائق العذاب الالیم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انکم بلا شبہ تم لذائق العذاب، البتہ چکو گے عذاب، العلیم بہت دردناک، وما تجزون اور تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، الا مگر ما اسی کا جو کنتم تعملون تم عمل کرتے تھے، الا لیکن عباد اللہ اللہ کے بندے، المخلصین جو چنے ہوئے ہیں، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے ہیں رزق معلوم، معلوم رزق، فواکہ میوے، وہم اور وہ مکرمون معزز ہوں گے، فی جنات النعیم نعمت کے باغوں میں، علی سرر تختوں پر، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے، یطاف پھرایا جائے گا، علیہم ان پر، بکأس بھرا جام، من معین بھرے چشمے سے، بیضاء سفید، لذت للشاربین پینے والوں کے لیے لذت، لا فیہا نہیں اس میں، غول سر کا چکرانا ہی، ولا ہم عنہا ینزفون اور نہیں وہ اس سے مدہوش ہوں گے، وعندہم اور ان کے پاس ہوں گی، قاصرات الطرف نیچی نگاہ رکھنے والیاں، عین بڑی بڑی آنکھوں والیاں، کأنہن گویا کہ وہ بیض انڈے ہیں، مکنون پردے میں چھپا کر رکھے ہوئے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان کے پاس وہ بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی، ان کا بے داغ وجود ایسا لگے گا جیسے وہ گرد و غبار سے چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان 12 آیتوں میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ دوسری بات، تمہیں کسی اور بات کا نہیں بلکہ خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسری بات، البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کے لیے طے شدہ رزق اور میوے ہیں۔ چوتھی بات، ان کی پوری پوری عزت کی جائے گی۔ پانچویں بات، نعمت سے بھرے باغات میں وہ اونچی اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ چھٹویں بات، ایسی عمدہ شراب کے جام ان کے لیے پیش کیے، ان کے لیے گردش میں آئیں گے جو سفید رنگ کی ہوگی۔ ساتویں بات، پینے والوں کے لیے سارا پر لذت ہوگی۔ آٹھویں بات، نہ اس سے سر میں خمار ہوگا اور نہ ان کی عقل بہکے گی۔ نویں بات، ان کے پاس وہ بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ 10ویں بات، وہ خواتین ایسی لگیں گی جیسے کہ گرد و غبار سے چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہاں بھی انہی کافروں سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جب وہ لوگ ایک دوسرے پر الزام ڈال کر
चुप हो जाएंगे तो उनसे फरिश्ते कहेंगे कि अब तुम्हें दर्दनाक अजाब का मजा चखना होगा, इस वजह से कि तुम दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी करते थे और उसके साथ शिर्क जैसे बुरे आमाल में मुब्तला थे। तुम लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे माबूदों की इबादत किया करते थे जो न तुम्हें किसी किस्म का नफा पहुंचा सकते थे और न ही किसी किस्म का नुकसान। बस ये तुम्हारे उन्हीं आमाल का बदला है जो आज तुम्हें मिलेगा। उसमें किसी किस्म की कोई नाइंसाफी नहीं होगी और न ही किसी किस्म का कोई जुल्म तुम पर किया जाएगा। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 64 कि तुम्हारा रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। उनको फार मुशरिकीन का जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदों का जिक्र फरमा रहे हैं कि हमारे जो मुखलिस बंदे हैं जिन्होंने सिर्फ हमारी इबादत की, हमारा कहना माना, हमारी इताअत में अपनी जिंदगी गुजारी, तो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला उस अजाब से बचा लेगा जो तुम्हें मिलने वाला है। उन्हें तो तरह तरह की नेमतें जन्नत में अता की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने तो उनकी दावत का इंतजाम मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाओं के ज़रिए तैयार कर रखा है, जैसे किस्म किस्म के मेवाजात उनके लिए जन्नत में होंगे जिनके ज़रिए से उनका इकराम किया जाएगा। सूरह तूर की आयत नंबर 22 में भी कहा गया कि वअमददनाहुम बिफ़ाकिहतिन व लहमिन मिम्मा यश्तहून, और हम उन्हें एक से एक फल और गोश्त जो भी उनका दिल चाहेगा देते चले जाएंगे। जिस परिंदे का गोश्त चाहे देंगे, जिस किस्म के फल चाहिए देंगे। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों को मेवे देने की बात कही, जबकि दूसरी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें इंसान खाता और पीता है। ये सब छोड़कर यहां सिर्फ मेवे का क्यों तज़किरा किया गया? इसका जवाब मुफस्सिरीन ने यह दिया, ग़िज़ा जो खाई जाती है वो जिस्म को क़ुव्वत पहुंचाने के लिए खाई जाती है, और जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला हर जन्नती को 100 आदमियों की क़ुव्वत अता करेगा। क़ुव्वत के लिए खाने की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी जन्नत में। वहां जो ग़िज़ा की जरूरत पड़ेगी, वहां जो ग़िज़ा खाई जाएगी वो सिर्फ लज्जत हासिल करने के लिए, मजे लूटने के लिए दी जाएगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ मेवों का तज़किरा किया। अल्लाह ताला जन्नतियों के रहन सहन की कैफियत बयान फरमा रहे हैं कि ये जन्नती लोग ऊंची ऊंची मसनदों पर टेक लगाए एक दूसरे के सामने बैठे हुए होंगे, के सामने मेवे रखे हुए हैं और मजे लेते हुए एक दूसरे से बातों में मशगूल होंगे। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, सब लोग हंसी मजाक और दिल लगी में मसरूफ होंगे। फिर उनकी महफिल में शराब भेजी जाएगी, वो शराब भी ऐसी सफेद उम्दा निहायत ही लजीज होगी, और ये शराब दुनियावी शराब की तरह जुनून पैदा करने वाली नहीं होगी, और न ही इस शराब के पीने के बाद आदमी के होश गुम होंगे, बल्कि उम्दा किस्म की मजेदार मशरूब की तरह ये शराब होगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, शराब में 4 चीजें पाई जाती हैं, नशा, सरदर्द, क़ै, पेशाब। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की शराब को इन सारी चार चीजों से महफूज रखा है। ला फीहा गौल, कि उसमें नशा भी नहीं होगा, अकल में फतूर नहीं आएगा, वला हुम अन्हा युनज़फून, और उसके पीने से उन्हें वो कै भी नहीं करेंगे जैसा कि दुनिया के लोग करते हैं। और कै तो जाहिर है कि गंदी चीज है, और ऐसी गंदी चीज से जन्नतियों को बिल्कुल दूर रखा जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला फीहा गौल वला हुम अन्हा युनज़फून, कि उस शराब को पीने से ना उनके सर में खुमार होगा और ना ही उनकी अकल बहकेगी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरीद नहीं है, हज़रत नाफ़े बिन अज़रक़ ने उनसे ला फीहा गौल के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि जन्नत की शराब में न ही बो होगी और न ही नापसंदीदगी जैसा कि दुनिया की शराब में होती है। अल्लाह ताला ने उन जन्नतियों को मिलने वाली औरतों की सिफत बयान की। यह औरतें ऐसी पाकबाज होंगी कि अपने शौहर के अलावा किसी को नजर उठाकर नहीं देखेंगी, बल्कि सबसे नजर झुकाई नहीं होंगी, जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा और हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह ने फरमाया। खूबसूरती में इतनी हसीन होंगी कि जैसे कोई खूबसूरत मोती रखा हुआ हो, और बाद ने कहा कि अंडा जितना सफेद होता है ऐसा ही उनकी खूबसूरती होगी, जैसा कि हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का कौल है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस जन्नत का शौक हमारे दिल में पैदा फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।